Very good morning to all of you. Beta, we are going to start with periodic table. Okay. Now, beta, if I tell you to do shopping from where you'll do from section 1 or section 2, where it is easier? Section 2. Why? Because it is what? Systematically arranged. Right now, beta? Okay. Now, beta, if I tell you to pick up the book, where it is easier for you to pick up the book from? Because it is what? Systematically arranged. Now in 10th standard beta, we are so similarly beta, there are so many elements, so therefore it becomes necessary to classify the element. Okay, so that the study of those element becomes what? Very easy for us. Now, in ninth grade, you have studied beta Dobby Reynolds. Remember beta Newland's law of octave. Then you have studied about this thing, Mendeleev periodic table. All those were based on what? Atomic weight. They all were based on what? Atomic Wait, but this is now modern periodic table only. In 10th, we are going to study only modern periodic table. So modern periodic table is based on what? Beta? Atomic number. Atomic number. So I'm going to just skip all this part because this is not there. Beta will directly start with modern periodic table. Okay. And yeah, this from here we are going to start. So what is who put forward modern periodic table? Okay. Henry Moseley. And what he said, the physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic numbers. This boy here, what's his name dear? Shaurya what? Okay, Shaurya beta. What is atomic number? Can you tell me? Yeah, position. So just like we have roll number in school, yeah, but that is not the related to, that is not the atomic number. What actually atomic number represent? Well, protons or electrons. So atomic number is equal to number of protons or electron in an atom. But if it is an ion, then we'll say only what? Protons. Because ion electrons are lost or gained. So anyways, what he said that the physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic number. Rachel number. Atomic number. Clear and not atomic weight, huh, beta? So what was his law? The physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic number. So this is the modern periodic law. Now I have given you notes. I want you to keep that notes in front of you. The very first thing, beta, if you see in that, what is given? Come on, tell me modern periodic law. Can you see? The physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic number. This is your modern periodic law. ओके अश्लेषा बेटा तेरा नोट्स किसको दूं मैं हेलो अश्लेषा For Aditi, अदिति भट्ट ओके ठीक है yeah, अनायता आई होप यू हैव द नोट्स विथ यू बेटा आई गिव यू यस्टरडे राइट yes, sir. okay so acha now beta we go to the next part then what he did beta he arranged the element in what okay vertical columns को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा periodic table is there beta and yeah look this is the modern periodic table so what do we call this horizontal हार्दिक पंड्या हॉरिजॉन्टल पीरियड याद रहेगा ओके एंड वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज व्हाट देन वर्टिकल कॉलम groups vertical columns are known as groups clear now what you all should know how many vertical columns are there how many horizontal rows are there so now what is given here if you see this is your देखो how many periods seven how many groups 80 is this clear to all of you hello now beta they will tell you to write the position this is very favorite question of examiner now what I want all of you to do how do we find period number how to find period number come on tell me number of shells or orbit. Number of shells or orbit. Then how to find your group number? So yeah, valence electron. Sorry. It is nothing but what? Valence. Valence means which electron? Outermost. I'm writing also here. Outermost electron. Outermost electron. Now, outermost electron can be what, beta? It can be either, बोलो, one. अगर one होगा तो क्या होगा? If outermost electron, if valence electron is one, then it will be group one. If it is valence electron is two, then it will be group two. But if it is three or more, then what you'll have to do?
So group number will be 10 plus that number. Okay. So 10 plus 3, if it is 4, then 10 plus 4, and so on. Are you getting it? Now, what is the favorite question of examiner? They will give you an element. What they will give you, beta? Element. Okay. They will give you element. Right? And I will give you this question. Yes. Miss Krishnan, you have to answer this. There is an element X. There is an element X. Okay, its atomic number is 19. Chalo. So I'll tell you, find its position. Find its. So what do you do first? First, what do you have to write? Electronic configuration. What do you have to write? आदित्य बेटा क्या लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So electronic configuration is what? 2 8 Advait. I'm so sorry. Advait, right? 2881. Okay, Krishnan. Now what you'll do, beta? Come on, tell me which period it will be. What is period number? Tell me. Number of. So how many orbits you can see here, dear? Tell me. 1, 2, 3, and 4. So which period it will be? Very good. How many valence electron? So group number. So what you are going to write here? Valence electron is 1. So group 1. Clear? Right? सारा का सारा आंसर बताना है आपको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. दिस वाज माय फर्स्ट एग्जांपल. आई एम गिविंग यू सेकंड एग्जांपल हियर. देयर इज एन एलिमेंट y. Its atomic number is 16. So what you will do now? Come on, tell me. So 2, 8, 6. So how many period are there? Tell me. How many shells are there? 3. So it will be what? 3. And what will be your group number? Now, how much valence electron are there? It is 3 or more or not? Tell me. So what will do? 10 plus 3. So it will be group 30. See, oh my God, मेरे को क्या हो गया bro? अरे बाहर 6 था. I'm so sorry यार. अरे हाँ रुकना भाई, ये हो गया है. अरे ये 6 है ना. ठीक है ना बेटा? यार मतलब मैंने 3 तो लिखा है ना. ओ माय गॉड, रात का नशा अभी तो गुजरा नहीं है लगता है. Okay, I'm so sorry यार. My bad. Okay, yeah. Okay, how many orbits are there? 1, 2, and 3. So period 3. How many valence electron are there? Okay, I'm so sorry बेटा. Yeah, 16. Is this clear बेटा? अभी आप बोलोगे सर, अभी आप लोग देखो कि बेटा ये पेज है बेटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इसमें देखो ऊपर पूरा गांव बस सकता है. ठीक है ना? ऊपर ये आया. Entire village can settle here, beta. So what you are going to do? I want you to copy this there, please. This is very important. Period number and there only you'll copy. बुक में कुछ लिखना नहीं है, बिकॉज यही इसमें से ही सब पढ़ना है. My God. Quickly. मैं चाहता हूँ आप लिखो. अच्छा, ये तुम्हारे स्कूल में वो लोग ने पहले क्या लिखवाया है? क्योंकि तुम्हारा स्कूल खाली एवीएम में ही बहुत नाटक होता है. पीरियड नंबर पहले लिखवाया है, ग्रुप लिखवाया है. हाँ तो बस यही करना, यही फॉलो करना. एच में डजंट मेक एनी मतलब सेंस. मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो. पोजीशन मतलब लिखना है तो कुछ भी. हाँ मालूम है, लेकिन अगर आप तुम देखोगे मैंने हमेशा पीरियड ही पहले लिखवाया है. हाँ, आई ऑलवेज मेड यू राइट पीरियड फर्स्ट. ओके, please write this. I'm so sorry. अरे वो उसने तो अटेंड ही नहीं किया. कौन थी वो? कौन? मिही? क्या हटाओ? ओह सो सॉरी, ये ऐसा रह गया. डन. यू विल राइट इन दैट ओनली. हाँ बेटा, इसी में सब लिखना है.
शनाया अभी आई, बाप रे। हेलो। हेलो शनाया, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, अभी तक कनेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, उसने ऑनलाइन में भी लेट कर दिया। आप सही बोलते हो बेटा। ओ सॉरी सॉरी। शनाया बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। चलो, हो गया सबका ये कॉपी करके? कम ऑन। Done, done. Hey, what will be the exception in this? Anyone? Yeah, how you? Yeah. Okay. Now, beta, suppose there is an element Z. ये अद्वैत के बारे में क्या नाम है बेटा आपका? अर्णव बेटा, सपोज मैंने अगर ऐसा आपको लिख के दिया, देयर इज एन एलिमेंट दिस, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू, राइट? सो which period it will become to? How many shells are there? One. But what? Acha, now group. How many valence electron are there? Two, na? So we may write beta group two. But this is not group two. This is group 18. Why? Because it is a noble gas. So this is your exception. Dun, dun, dun. Please copy this third one also. Because this is helium. Again, I'll write it. Z2 means what it is? Helium. Shania, beta, we have started with periodic table. We have just started. Don't worry. I'm going to share the Okay, sir. recorded video also, but you only tell me if the physical modern periodic table only we are going to study. I have given the notes also. एक minute beta. These are the notes. You will study only from this. No need to refer textbook. Okay, sir. Yeah, the physical and chemical properties of element are periodic functions of their atomic number. That is modern periodic law. How to find period number? Period number is number of shells or orbit. Okay, so now I have given one element atomic number 19. So I wrote the electronic configuration 2881. So how many orbits are here? 4. So it is period 4. Group number is valence or outermost electron. If valence electron is 1, it will be group 1. So now tell me here which how many electron is there? 1. Therefore it is in group 1. But if valence electron is 3 or more, then we have to add 10 to it. Okay? So now there is an element Y. If I tell you to find the period and group number, so first we write the electronic configuration 286. So which period it will be in? Period 3. How many valence electron are there, Shania? 6. So 10 6. plus 6, so it is group 16. And this helium is an exceptional case because you will say that there are only 2 electrons, but it is in group 18. Chalo, done all Okay. of you? Okay. Chalo. Understood, beta. Sure, yeah, beta. Have you understood this? Now, chalo, beta. Now you'll say, sir, where all this is given in the notes. I have given in the notes also. I'll show you, beta. Look. Hey, we started with this modern periodic law, right? Physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic. Acha, how many horizontal rows? 7. Look, I have written also. How to find period number? Number of shells. Then how many vertical column? 18. They are known as group. And group represent what? Number of valence electron. But, if you see here, I have written here. If valence electron is 1, then group 1. 2, then group 2. But if it is 3 or more, then what do you have to do? Plus. Any difficulty till here? Okay. Now, they will ask you what is, and this is your modern periodic table. Group 1, what do we call group 1? Group 2 is, okay, 3 to 12 is, 17 is, and group 18 is. Now, what do we call this? 13 to 60. Okay, so I just want to write there post transition there. Write it 3 to 16 is post transition. Student, next class I am going to give you board booklet.
in that past 15 years papers will be there. 15 months है. Okay. Because actually I was giving from 2000, but बेटा ना उसके पहले का काफी स्कोप में से निकल गया है. So now I have reduced it actually. Otherwise 2000 से मतलब पूरा 27 से 26 years का होता था, उतना करके जरूरत नहीं है. So I reduced it to 2013 because उसके बाद उसमें भी 1-2 साल का स्कोप में नहीं है, फिर भी मैंने रखा है. Then I'll be giving you बेटा उसी में एक सेक्शन पूरा बोर्ड क्वेश्चन का होगा, फिर उसके बाद में मैंने एक सेक्शन बनाया that is only for MCQs. So there in chapter wise MCQs will be there. उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा करके सेक्शन बनाया है. In that extra section beta, what is given beta? Important definition, okay, important reaction, important test for detection, observation. Then I have given that odd man out, match the column, name the following, write your observation. ऐसा करके अलग से section बना के दिया है. ठीक है, चलो. You will study only the notes, 1 page notes I am giving to you, and then the board booklet. That's it. चलो बेटा. अच्छा, one more important thing बेटा, periodic table and chemical bonding are interrelated to each other. So I will not take separate test for periodic table and separate test for chemical bonding. It will be always combined. Okay. So what I'm going to do today, I'm going to finish off periodic table. Next class, I'll finish off chemical bonding, and then there will be test. Okay. चलो, done. Okay. Now, if you see this horizontal row, this is the first period. First period में how many elements are there? बोलो. अरे 2. How many elements are there in first? 2. So it is what beta? Shortest period. In second period, how many elements are there? Count. 2. Yede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. It is a short period. Hey, yeah, देख. 1, 2, 3, 4, 5. How many are here beta? 8. So first period is shortest. Second and third period is which period? Short period. भी सब बता देता हूँ. देख लो इधर. ये देखो फर्स्ट पीरियड में how many elements are there? 2. So it is what? Shortest. अच्छा, in exam I can ask you, name a period which has both 2 elements and both of them are gases. Which period? First period. दिखाई दे रहा है? Okay. Second and third are what? Short. दोनों गैस है ना, हाइड्रोजन और हीलियम. Second and third are what? Okay. Fourth and fifth, how many elements are there? 18. So it is long. Okay. In MCQ, they will ask this. Thisha Jain. Okay. In MCQ, they will ask this. In fourth period, how many elements are there? हाँ, ऐसा MCQ आएगा. Second period में how many are there? 8. Which is the longest period? Sixth period is the longest. And which is the incomplete, beta? 7. Okay, so if you see in my notes, everything is given here. Look, hey, first period, how many shell? 1 shell, because period number is equal to shell. This is the shortest, short, long. This is what? Longest. And this is what? Incomplete. Although the capacity is 32, इसका capacity 32 है, लेकिन वो क्या है? Incomplete. हाँ, वो 26 हम लोग ने 9th में लिखा था बेटा. ठीक है ना, 10th में अपने को मेंशन नहीं करना है. एक्चुअल में 10th में बेटा वो लोग ने 30 तक करके दिया है. अगर आप देखोगे, लेकिन आप उसको इंक्लूड, दे विल नेवर आस्क 7th पीरियड में कितना होता है. क्लियर? एनी डिफिकल्टी? क्लियर? ओके, नाउ बेटा वी गो टू द इंडिविजुअल पार्ट. ओके, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली है. अल्कली, राइट बेटा. नाउ आ जाओ ना. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको तो पता ही होना चाहिए बेटा. दीज आर फर्स्ट 20 एलिमेंट. दिखाई दे रहा है बेटा? उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी. आ जाओ. हाउ टू रिमेम्बर फर्स्ट दिस अल्कली मेटल. उसके लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था, बोलो. हाँ, लीना के आर बी सीज फरार, और लीना ने की रब से फरियाद. ठीक है ना बेटा? whichever one you like you can write. और लीना की रबड़ी सस्ती और फ्रेश, whatever आपको चाहिए आप याद रख सकते हो. Anyways बेटा, this is very important here. Now I want you to tell me बेटा here. Okay. इधर आ जा बेटा. शौर्य बेटा, how many electrons are there in their outermost shell? Come on, tell me. Therefore, their valence electron is how much? 1. Acha, valency will be also how much? 1. Any element which has 3 or less than 3 electron in its outermost orbit, it will always lose.
So it will lose one, so it is electropositive. Is the one who loses electron. They are what? Strong reducing agent. MCQ में आएगा, which group element are strong reducing agent? Group 1. Why they are strong reducing agent? Because they have only one valence electron and they will lose it easily. Clear है? अच्छा, anyone who has three or less than three electron are generally metal. Generally मैंने word use किया, not always. Okay, so they are metal. Okay, they are very soft metal. Can be cut with the help of knife. They are highly reactive. Okay, why they are kept under kerosene? ये सब आपको पूछेगी नहीं, but you should know. Why they are kept under? अरे इंटरनेट क्यों ऐसा अनस्टेबल आ रहा है? They are kept under what? Why? Because they are highly reactive. Because if you keep it outside, they will react with the moisture. In hydrogen chapter we have studied. Okay, right? Why they are known as group 1 are called alkali metal? Because they react with water to form what? अच्छा, anything which has OH we call them as what? Base. लेकिन जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली. क्लियर? सो ग्रुप वन का कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज अल्कली. क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? ओके, सो नाउ लुक बेटा इन पीरियोडिक टेबल देखो आया कि नहीं, लीना के आरबीसी फरार. ओके, नाउ बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रुप 2. आजा छपरी बॉय, कम ऑन यार, इधर देख, ध्यान, तू क्या कर रहा है वहां पे टाइम पास? चलो बेटा, ग्रुप 2 को क्या कहते हैं बोलो बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल. हाउ टू रिमेंबर इट? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. So beta means beryllium, manganese means magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Now tell me how many valence electron are there in their outermost shell? All of them 2, 2, 2, 2. Valence electron is 2, therefore valence is also 2. 2 electrons, so it will also lose. So it is also electropositive. It is also reducing its electrons. So it is also what? Reducing agent, but little less than alkali. Why it is little less than alkali? Because alkali element wanted to lose only one electron. This fellow wants to lose how many electron? Clear hai? So this is all about your what? Okay, and why it is in group 2? Because valence electron is 2 na, where number of valence electron is equal to group number. Okay, चलो आगे बढ़ेंगे. So look beta, we have done this alkaline earth. Look, I have written also in my notes. बेटा मैं क्या clear है बेटा? Now we go to what? Halogens. How to remember halogen? Come on, look here. First class biryani I ate. Yeah, 80. First class biryani I ate. First means chlorine, bromine, iodine, astatine. We generally will not study about astatine because it is radioactive. Okay, how many valence electron are there here? Come on, look. So it will lose electron or gain. Lose and gain. Any element which has 4 or generally 4 or more than 4 electron, they will always gain. अच्छा, how many valence electron are there? 7. So group number, if the valence electron is 2, 3 or more, then what you have to do? Plus 10. So therefore it is in group. Understood? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो बेटा, ये क्या करेगा? गेन करेगा कि नहीं बोलो? तो वैलेंसी विल बी -1, राइट बेटा? ये जो लूज करता था वो क्या होता था? रेड्यूसिंग एजेंट. अभी ये क्या कर रहा है? गेन. तो गेन करेगा तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइज. Which group element are strong oxidizing agent? Group 17. Okay, right? Because they have 7 valence electron and they can 1 electron very easily. चलो बेटा, next part. Why they are known as halogen? Okay, हाँ बेटा, if it reacts with metal, if they react with metal, they form salt. Halo means salt. Gen means producer. Clear? Right? Okay, in this, अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ. In this, fluorine and chlorine are gas. Bromine is reddish brown liquid, and iodine is solid. Now, beta, I want all of you to come here, beta. Look here. I have given in my notes, beta. Can you see group 1 alkali 1A alkali metal I have written or not? Okay, लीना ने की रब से फरियाद, लीना की आरबीसी फरार. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और यहाँ पे आपको खाली क्या लिखना पड़ेगा बोलो बेटा? यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बोलता हूँ, वो लिखो. सॉफ्ट मेटल एंड केप्ट अंडर केरोसिन. इसलिए बेटा जो बच्चे ऑनलाइन है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफलाइन आने का. जिनके पास नोट्स नहीं है उनको मैं बोलता. ए ग्रुप 2 क्या था बोलो बेटा? ये भी पढ़ा था ना बेटा, मांगे कार स्कूटर बाबराजी. दे आर रिड्यूसिंग एजेंट बट लिटिल बट लेस देन ग्रुप 1. लेस देन ग्रुप 1 यहां पे लिख दो. फिर हेलोजेंस मैंने अभी बताया ना बेटा. फर्स्ट क्लास बिरयानी 8.
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। अच्छा, फिर हाइड्रोजन में आप लोग बेटा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, दे आर विच गैसेस, ये हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक ना, फ्लोरीन डायटोमिक गैस, Cl2F2Br2, राइट ना बेटा, डायटोमिक गैस लिखो वहां पर, उसी के अंदर लिखना है। इज दिस क्लियर? सारा बेटा, सारा का सारा समझ में आ रहा है? ओके चलो। ए हीरो, आशर, यहाँ पे देख, हो गया ये लिखा तूने, सब लिखो हाँ, जो भी पॉइंट बोल रहा हूं मैं वो। अब आ जाते बेटा इधर पे ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कौन है बोलो, आ जाते हैं। कृष्णा बेटा हो गया तेरा, आ जा। बेटा ये देख, फ्लोरीन क्लोरीन, अच्छा आपको याद रहा, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, और आयोडीन कौन है, सॉलिड, हाँ सॉलिड है, सॉलिड है ऐसा। अच्छा एमसीक्यू में कभी पूछते हैं ना विच इज रेडिश ब्राउन लिक्विड, तो आपको याद होना चाहिए ब्रोमीन। अच्छा डायटोमिक है कि नहीं, सबका एटोमिसिटी कितना है बोलो बेटा, टू 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 डायटोमिक, वो मैंने लिखवा दिया आप लोग ना बेटा, ये सब बाद में करेंगे। ग्रुप 18 में बेटा, ग्रुप 18 में कौन है बोल बेटा, ग्रुप 18 नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस, राइट है बेटा। हाँ कैसे याद रखना है, ही ना, नी ना और करीना के जेरोक्स रंगीन या एक्स रंगीन जो भी है, या एक्सरे रंगीन जो भी चल लिखना है। हाँ एक्स रंगीन अच्छा है ना बेटा, हाँ चल। ए ऑल ऑफ यू बेटा, कैन यू सी देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 8, देयरफॉर ग्रुप 18। बट आपको याद है आज मैंने स्टार्टिंग में करवाया था हीलियम एक्सेप्शन, डुप्लेट, so they have a octet as well as duplet complete, so they are what, non reactive, वैलेंस इज 0। अच्छा बेटा हाइड्रोजन H2 होता था, लेकिन क्या हीलियम He2 हो सकता है, नहीं ना बेटा, हाँ तो दे आर विच गैसेस। ओके बेटा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आई शेयर दिस इन द ग्रुप, ये पीडीएफ खाली ऐसे रेफरेंस के लिए, लेकिन मैंने नोट्स में जो दिया वो आपको सब याद रखना है अच्छे से बेटा, ठीक है ना। तो इधर पे आ जाओ, नोट्स में खाली आप यहाँ पे नया पॉइंट क्या ऐड करोगे बताओ। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे खाली लिख लो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। बेटा 10th में अगेन आई सजेस्ट, ट्राई आई मतलब, अगर आपको हमेशा ऑफलाइन ही अटेंड करना है, जिसको भी अगर ऑनलाइन अटेंड करना होगा तो आपका पेरेंट का मैसेज आएगा तो ही मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। बिकॉज आई विल बी ब्रिंगिंग एंड गिविंग यू द नोट्स, फिर आपके पास नोट्स नहीं होगा, आप घर पे से नहीं कर सकते, अच्छा, और यहाँ पे ऑफलाइन ही आना है, ठीक है। चलो, डन 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 ना बेटा, वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा, आजा हीरो। ओके, नाउ बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके। ट्रांजिशन में बेटा जनरली ऑल आर मेटल्स, आप लोग ने देखा रहेगा, कॉपर, क्यूपरस, क्यूपरिक, फेरस, फेरिक, राइट, सो दे आर वेरिएबल वैलेंसी और नॉट, टेल मी। ओके, देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, कॉपर का सल्फेट याद है ना, ब्लू कलर, फेरस वाज डर्टी ग्रीन, फेरिक वाज रेडिश ब्राउन, ओके। So I want all of you to look here. I have given this beta. Can you see 3 to 12? They are what beta? Transit. Shows variable फॉर्म्स कलर। अच्छा बेटा ना, मैं खाली यहाँ पे जो बोल रहा हूँ इस पे खाली एक ऐसा लिख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई कोई स्कूल के प्रीलियम में आता है, बोर्ड में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक ये पॉइंट आना है, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, मैं लाल कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे, लास्ट टू शेल्स आर, बोलो, आर इनकम्प्लीट, ये खाली ऐसे लिख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट, लास्ट टू शेल्स इनकम्प्लीट। इज दिस क्लियर? हेलो, चलो क्लियर, लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीट, ओके। अदिति बेटा, ना वी गो टू व्हाट बेटा, अगर आपने देखा रहेगा पीरियोडिक टेबल में ऐसा नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बेटा, ये यहाँ से ऐसा कुछ आ रहा है ना नीचे, ये कौन सा पीरियड में है बोलो बेटा। अच्छा यहाँ यहाँ पे से देखो बेटा, ऐसा कुछ नीचे आ रहा है, तो 6th पीरियड में कौन है, लेंथ। 7th में कौन है, ये कितना एलिमेंट होता है, 14 14। अच्छा बेटा, अभी ये किसके अंदर से दोनों लाइन आई, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया है बोलो बेटा, देखा मैंने सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मेरे नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है।
तो अभी बेटा, अभी आपको एग्जाम में क्या आएगा? अदिति बेटा बोलो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो, कहां पे प्लेस्ड है बोलो? बिलो। टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? अच्छा, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज का नाम क्या था? लेंथेनाइड का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम? पीरियड। ओके, सेकंड इनर ट्रांजिशन इज व्हाट? ऑल आर रेडियो एक्टिव, विच पीरियड? अच्छा, बट बोथ ऑफ देम आर इन विच ग्रुप? ग्रुप देखा आपने? दोनों एक ही ग्रुप से आ रहे हैं ना, देखा है? याद आ रहा है कि नहीं? ओके, सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है बोलो? एग्जाम में बहुत ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। व्हाट दे विल आस्क? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनाइड आर आल्सो नोन एज which period? Actinides are also called as which period? but both group कौन सा है? both group 3। अच्छा, यहाँ पे खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे? ए इन lanthanide एंड lanthanide में कितना होता था? लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट। यहाँ पे कितना होगा? लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट। लिख लो। डन 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 डन। Yes, sir. हेलो। अरे यहाँ युवान भाटिया ना? Now, Veda, we are going to go for the periodic trends. Okay. Now, examiner, they will generally, बेटा, ये चैप्टर का सबसे एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। एक तो मैंने आपको बोला हाँ, आपको ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ये बोर्ड में आता ही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म। ओके, आई विल डिस्कस ऑल द बोर्ड क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी। नाउ बेटा, वी आर गोइंग टू गो फॉर द फर्स्ट थिंग, that is first periodic trend is what beta? Atomic size. But before going to atomic size, I want to do few things with you. चलो आ जाओ इधर। ये क्या हो गया? अरे ओ, मैंने अभी ओपन किया। हाँ, ये आई वांट टू सी दिस बेटा। इधर आ जाइए, कम ऑन। शेट्टी, इधर देख। अच्छा बेटा, कैन यू सी दिस? दिस इज माय वर्टिकल कॉलम ग्रुप और नॉट? टेल मी बेटा। ओके, सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन दिस? कम ऑन सी। वन 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 वन, राइट बेटा? सो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? रिमेन्स। यहाँ पे भी बेटा देखना, टू 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 टू, डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स। ओके, अक्रॉस द पीरियड, ये शेट्टी, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है तेरा? कितने से बढ़ा? 1 से। यहाँ पे भी कितने से बढ़ा? 1। तो डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय। क्लियर? ओके। Now, beta, if there is any element which has 3 or less than 3 electrons, they will generally lose. So, what will happen to their valency? This valency will be in group. Valency will remain same. यहाँ पे कितना होगा? +2। यहाँ पे कितना होगा? प्लस। तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स व्हाट बेटा? सेम। Here it will gain 1 electron ना बेटा, दिख रहा है कि नहीं? -1. Here it will gain 2 electron or not? Tell me. So now what next question they will ask? What happens to the valency in the group? Remains same. But across the period क्या होगा? It increases up to 4 and then it decreases up to 0. तो अभी आप बोलोगे अच्छा। Now one more important thing. Look, युवान भाटिया, यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना ऑर्बिट है? 1। यहाँ पे कितना ऑर्बिट है? यहाँ पे कितना ऑर्बिट है? 3। तो डाउन द ग्रुप ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय। अक्रॉस द पीरियड तेरा ऑर्बिट कितना है देख? हाँ, तो अभी मैं आपको जो 3 पॉइंट बताया वो आप देखो ना। यहाँ पे मेरा नोट्स है, दिखाई दे रहा है? नोट्स में आप राइट हैंड साइड में देखो, ऐसा टेबल दिखाई दे रहा होगा, देखो। उसमें से मैंने आपको कौन सा पॉइंट करवाया? दिस लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख, यहाँ पे मैंने मस्त लिखा है, सब रंगोली दिया है। आई हैव गिवन ऑल कलरफुल। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, बट लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था? इंक्रीजेस बाय 1। नंबर ऑफ ऑर्बिट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बाय 1। अक्रॉस द पीरियड रिमेन्स। Valency down the group remains same. Across the period, it increases up to 4 and then decreases up to. Now, beta, we are going to go for the important point. चलो बेटा आ जा। ओके, या ये भूतानी, यहाँ पे देख, हवा क्या खा रहा है उससे? वो हवा खाने के लिए नहीं है बेटा। Now, beta, I am going to do very important point, and this is the very first periodic trend we are going to do, beta. Come on, pay attention here. Beta, if there is a circle and from the center, if I draw a line, we call it as what? Radius. But if it is an atom and from the center of an atom, if I draw one line, then it is known as what? To the outermost shell. Then this is known as atomic
radius. Now first question, okay. यहाँ पे देखिए भूतानी would define atomic radius. क्या बोलेगा? It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell. Clear है? Okay, is known as atomic size or atomic radius. Now tell me, beta, down the group. अच्छा, in exam they will ask only two things. What happens during the down the group and across the period? So down the group, beta, what is happening? Number of shell is increasing by one or not? Tell me. So what is happening to your atomic radius? Increases. आ जाओ यहाँ पर पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमारे नोट्स में देखो. Atomic size or atomic radius, it is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell. Down the group, give reason. Down the group atomic size increases. तो क्या बोलोगे बेटा? Because down the group बेटा एक एक शेल बढ़ रहा है कि नहीं? देखो तो distance is increasing or not? Tell me. Is this clear? Yeah. Right. Now Shaurya beta, you tell me, have you ever come across this word? अरे आजा. Have you ever come across this word nuclear charge? ऐसा कभी सुना है बेटा? Nuclear charge. Okay. What is nuclear charge? अच्छा, have you seen in an atom at the center what we have? Nucleus. Nucleus में what is there? Proton and around the circle what is revolving? Electron. Now inside the nucleus, neutron has any charge? So what is the charge on the nucleus? It will be equal to the charge on the. अच्छा, what is proton? Number of proton is equal to what? Atomic number. So whatever is the atomic number of an element, it is equal to its what, beta? Nuclear charge. It is equal to its what? Nuclear charge. Okay? Is this clear? So now you tell me, across the period, what will happen, bro? I have written sodium atomic number 11. Magnesium is, वहां पे मत देख हीरो, पहले यहाँ पे देख. 11, this is 12 and this is what? So atomic number is increasing or not? Tell me, beta. So number of proton will also increase. So number of proton will increase. So nuclear charge will also what? Increase. ए भूतानी इधर देख, इधर है. So look, I have written here. Across the period, what is happening? Can you see? Atomic number was 11, so it was having 11 proton. This was having how many proton? This was having how many proton? Oh, so acha, hey, what is the charge on the nucleus in this? 11. What is the charge on the nucleus of this, beta? 12. So the nuclear charge is increasing or not? And beta, what is happening? Number of orbit are remaining same. Across the period, number of orbit remains same or not? हाँ बेटा, यहाँ पर कितने 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है. यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग? how much is the nuclear charge? 12. 12 positive charge is attracting the electron. Here, how many? 13 positive charge is attracting the electron toward itself. So where the force of attraction will be more, in 11, 12 or 13? 13. So what will happen? Across the period, atomic number increases by 1, but number of orbit remains same. So nuclear charge increases by 1. Therefore, the outer electron will be pulled more closer to the nucleus, and therefore, what will happen to the atomic size? Very good. So, beta, in exam they will ask you across the period why atomic size from left to right. देख यहाँ पे दिया है ना बेटा, मैंने यहाँ पर left to right. So how to write the answer? ऐसे मत लिखो decreases. You have to write this. Across the period, number of shell remains same, but number of protons, that is nuclear charge, increases. Therefore, electrons are pulled more closer to the nucleus. Hence, atomic size. अभी बेटा यहाँ पर देखो अद्वैत, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एटॉमिक साइज देख रहा है कम होते जा रहा है, कम हो 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 रहा है. ये सबसे छोटा कौन है? ये तो हैलोजन. सबसे बड़ा कौन है? अल्कली. तो एग्जाम में पूछेंगे इन अ पीरियड which group element are the biggest? अल्कली. In a period which group element are the smallest? हेलो. Don't write anything, everything is given. अच्छा, आपको बता देता ये इससे बड़ा होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता है बेटा, थोड़ा बड़ा होता है. नोबल गैस स्लाइटली बिगर. नोबल गैस इज स्लाइटली. Why? Noble gas have stable electronic configuration. अच्छा, across the period बेटा 2,1, 2,2, 2,3 तो 2,8 हो जाएगा. They have maximum electron. They have
अच्छा, electron are negatively charged, electron have negative, so negative negative will repel. So they give reason why noble gas are slightly bigger than the halogen. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? Stable electronic configuration and main important point is due to inter-electronic repulsion. उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बड़ा। तो अभी आप बोलोगे सर ये सब पॉइंट कहाँ है सर? तो ये देखो यहाँ पर है, alkali metal are always the biggest. Halogen are always the smallest in their respective. This point also I have highlighted. Can you see? Inert gases are slightly bigger than halogen. Don't worry, all the answer also I given, but again I want you to write here why they are due to inter-electronic repulsion. Repulsion. Due to inter-electronic repulsion. Are you getting it? Hello. Done. चलो डन। नाउ अभी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो लिसन केयरफुली। अरे यार इंटरनेट क्यों यहाँ पे तो फुल दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हेलो अनायता, अश्लेषा, शनाया, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्यों ऐसा ना यहाँ पे दिखा रहा है? ओके, एनीवेज चलो। नाउ अभी है ना बेटा, ये नो प्लीज यू आर नॉट सपोज टू रेफर दिस वैल्यूज एंड ऑल, मैं आपको खाली बता रहा हूं। हम लोग ने आज क्या सीखा अभी राइट नाउ? डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज, इंक्रीजेज और नॉट? टेल मी। तो लोग कैन यू सी हियर द वैल्यू, ये छोटा है और ये सबसे बड़ा है, दिखाई दे रहा है? टर्न द पेज, पीछे देखो, दिखाई दे रहा है? वैल्यूज पे ध्यान मत दो। ये अक्रॉस द पीरियड देख रहा है साइज कम हो रहा है कि नहीं? खाली मैं आई वांट यू टू मेक द करेक्शन यार, इसको 67 कर दो। Sorry. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. Make it 65. Sorry, 65. Oh, and make this 100. बस, बस ऐसे। ए नोबडी विल आस्क दिस वैल्यू व्हाई, मैंने ऐसा क्यों बोला? अरे देखना फ्लोरीन 64 या 65 से थोड़ा बड़ा है ना बेटा। अभी हम लोग ने पढ़ा, अरे वो जान दे, वो सबको मत देख, तुमको खाली ये फर्स्ट इसमें ही ध्यान देने का है, ठीक है ना? पहला मैं आपको बता देता हूं बेटा, वी आर स्टडीइंग दिस पीरियोडिक टेबल एट सुपरफिशियल लेवल। बेटा व्हेन वी गो टू 11th स्टैंडर्ड ना, देन यू विल एक्चुअली स्टडी व्हाट इज पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, राइट? हाँ, ये सब हम लोग सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ा है। अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नथिंग पीरियोडिक अबाउट पीरियोडिक टेबल। हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं ना, ऐसा होता है बहुत बहुत, ये एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। तो आप बोलोगे अरे भाई तो पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियड, हाँ वो नहीं, आपको अभी नहीं समझेगा, वो 11th 12th में समझेगा। चलो एनीवेज बेटा, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू बेटा, यहाँ पे देख, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है यहाँ पर देख। हाँ, आप बोलोगे सर फ्रेंडशिप तो होता था ना उसके नीचे, बेटा इट, फ्रेंडशिप इज रेडियो एक्टिव, और जनरली वो लोग ऑप्शन में फ्रेंडशिप मेंशन करेंगे विच इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। अगर ऑप्शन में फ्रेंडशिप होगा तो ही लिखना, अदरवाइज वो लोग ऑप्शन में क्या देंगे आपको, ये ना इसमें से, तो कौन सा होगा आंसर? सीजियम। क्या होगा? नाउ टेल, अच्छा अभी एग्जामिनर आपको ना मेन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड, अच्छा मैं आपको बता देता, डोंट राइट एनीथिंग, खाली यहाँ पे ध्यान दो। ए अगर मैंने आपको बोला arrange the element in the alkali metal in the increasing order of atomic size, Shaurya beta, if that I tell you increasing order, so how will you write? Of alkali metal, alkali वाला, तो क्या लिखेगा तू बोला? लीना के आरबीसी। लेकिन बेटा एग्जामिनर उल्टा भी पूछता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम कैसे लिखोगे? हाँ, ये लिख मत बेटा, ये सब हमने दिया हुआ है। हाँ, ऐसे लिखना है, समझ में आया? इसमें ऐसा आपको आंसर में ऐसा ये क्रोकोडाइल साइन ऐसा बनाने का नहीं है बेटा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? या ऐसा, ऐसा नहीं करना है। तो ये मैंने ग्रुप 1 का बता दिया। ए दिस छपरी बॉय, ये टेल मी दिस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ग्रुप 2 का पूछोगे तो हाउ विल यू राइट? बेटा मांगे कहा स्टूडेंट इंक्रीजिंग, दे कैन आस्क यू डिक्रीजिंग आल्सो।
they will ask only for group 2, group 1, group 2, and then they will ask for what? Halogens. And last में दो लोग किसका पूछेंगे? Noble. Yes. They will ask you both. They will ask you both. Increasing के लिए sometimes they will change the word ascending order. For decreasing what they will write Krishna beta descending order. Clear? Hello. बट बेटा मजेदार बात कहां पर होने वाली है पता है तुमको? पीरियड में विल हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. व्हाई? वेरी 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 केयरफुल. अर्नव ना बेटा, अर्नव. क्यों बेटा बता? पीरियड में अगर मैंने तेरे को बोला अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा कौन है? पहला, सेकंड और थर्ड पीरियड ही पूछेंगे तेरे. लिथियम बेरिलियम देख रहा है, ऐसा लिखेगा. लेकिन बेटा तू एंड में नियोन नहीं लिखेगा, नियोन इसके पहले आ जाएगा. क्यों? स्लाइटली बिगर. अब समझा क्या? ओ, ए थर्ड पीरियड में क्या करेगा बोलो? थ्विशा. ओके. थ्विशा बेटा क्या करेगी? ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा लिखने, यहाँ पे एंड में ना आर्गन मत लिखना. क्लियर है? तो अरे आप टेंशन मत लो, कुछ लिखने का नहीं है, सब दिया हुआ है. देखो बेटा इधर आइए ना, ये देखो पहला मैंने आपको क्या बताया था बोलो बेटा? मैंने बहुत सिस्टमेटिकली, आई गिवन एवरीथिंग सिस्टमेटिकली टू ऑल ऑफ यू. लोग यार, वे आर एटॉमिक अल्कली मेटल. इंक्रीजिंग ऑर्डर लीना के आरबीसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो उल्टा अल्कलाइन अर्थ हेलोजन नोबल गैस. अब आप बोलोगे सर आपने पीरियड का तो दिया ही नहीं. दिया है, अलग से दिया है, मैं बताता हूँ. ये आई जस्ट वांट यू टू राइट. ये इंक्रीजिंग के जगह पे आप लोग को कभी कभी क्या दे सकते हैं बोलो? असेंडिंग. और डिक्रीजिंग के लिए क्या दे सकते हैं? प्लीज राइट दिस अबाउट दिस. पेज नंबर 2 पे है बेटा. अब समझा ऑनलाइन स्टूडेंट क्यों आना चाहिए सब? अभी मैं लिखवा रहा हूं क्लास में. अच्छा नोट्स है उसके पास तो है बेटा, तन्ना के पास नोट्स है बेटा. चलो. क्या हो गया भाई? भाई व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम ब्रो? Another mosquito is back. Thank you for killing. अरे वो अनाया नहीं आई आज बेटा? अनन्या, अनाया क्या नाम है उसका? अनन्या. Cream is missing today. Only the biscuit is. Anyways, चलो बेटा आगे बढ़े क्या? हेलो. या बस बस आ जाते बेटा. ये समझा आप लोगों को? एक बहुत प्लीज ए हीरो बोका इकडे बघ. बोका प्लीज प्लीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने दोनों दिया. टेक्स्ट बुक में आपको एक ही ऑर्डर दिखाई देगा, इसलिए मैंने बोला मैं जैसा तेरा उसमें से पढ़. चलो बोका बेटा, पीरियड का देख मैंने यहाँ पे अलग से दिया है. पीरियड में ये बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं. ये देखो एकदम नीचे दिया मैंने. पीरियड में आप खाली ये अंडरलाइन करो फ्लो. देख अगर डिक्रीजिंग बोला तो देख नियॉन पहले आ रहा है कि नहीं? अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो फ्लोरीन छोटा फिर नहीं. ये दो को खाली अंडरलाइन करो. यहाँ पे भी थर्ड पीरियड में भी देख आर्गन पहले आ रहा है, फिर क्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट. और यहाँ पे देखो ये दोनों ऑर्डर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पर. अच्छा एग्जाम में बेटा वो लोग सब नहीं देंगे, इसमें से कोई भी चार देंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेगी तो कर पाओगे? बोलो ना. So this was about the atomic size. This was all about the atomic. Now बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग करने वाले हैं. बेटा आई एम गिविंग यू समथिंग, लुक हियर. And I'm writing here something. This is sodium atom. Okay, sodium atom atomic number is how much? 11. So it has 11 proton, 11 electron. So total is what beta? Atom is electrically neutral. Okay, atom is electrically. Okay, बोका इधर देख. एटम is. अच्छा ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बोल बेटा? 2 8. अब मैंने इसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा? Na 1+. 1+ की हुआ. ए प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस, दे विल नेवर चेंज. बट इलेक्ट्रॉन गया. ए हीरो इधर देख. तो देख 10 11 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव. सो हाउ मच विल गेट? 1 पॉजिटिव. ये एनीथिंग व्हिच इज पॉजिटिव वी कॉल इट एज व्हाट? चार्ज है तो आयन. Which ion? Cation. Now, in exam, Boka, they will ask you who is bigger, atom or cation?
तो देख कैसे करने का वो भी मैं बताता हूँ, चलो। इमेजिन दीज टू आर क्लासरूम, वन इज एटम एंड वन इज नाउ दिस प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? टीचर्स। दे आर व्हाट? दोनों में टीचर कितने हैं बोलो? इन बोथ द क्लासरूम 11। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द क्लासरूम? इलेक्ट्रॉन्स आर स्टूडेंट। तो कौन से क्लासरूम में टीचर का होल्ड विल बी मोर ऑन स्टूडेंट्स? हाँ बराबर ना, अरे जहाँ पे कम स्टूडेंट है कि नहीं। हाँ तो बेटा अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों का देख न्यूक्लियर चार्ज क्या था, सेम था। लेकिन आप मेरे को बता 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? क्यों इफेक्टिव वर्ड लिखना पड़ा? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज वाज सेम बट हियर इफ आई कंसीडर स्टूडेंट आल्सो लाइक इलेक्ट्रॉन, so here effective nuclear charge is more. Effective nuclear charge is more. So now who will be smaller? Tell me. So between atom and cation, who is always smaller? क्लियर है? कटायन छोटा होगा ना, बराबर है। तो अभी एग्जाम में ये गिव रीजन आएगा बेटा, ये देखो इधर आइए ना प्लीज। अरे आओ ना यहाँ पर, कैन यू से cation is always is smaller than what? समझा कि नहीं? एटम। कैसे? काय को देख यहाँ पे दिखा है बोथ है व्हाट, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट cation हैज व्हाट, ये सब मैंने दिया है, देख रहा है? ये सोडियम एटम है, दिस इज एटम, दिस इज कटायन 11 electron 11 proton but here it is 10, so here what is more लेकिन यहाँ पे खाली ऐसा ना, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर, इफेक्टिव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं, बिल्कुल। अभी आप कौन मेरे को सोच के बताएगा बेटा यहाँ पर? दिस आशर गर्ल। Yeah, now I am giving you three things, beta. Here, if I give you an ion, then I give you atom, then I give you cation. कौन सबसे बड़ा होगा? अच्छा अभी मैं बता थे, आप पहले ना इतना लिख लो यहाँ पर। अगर आपको तीनों दिया रहेगा अनायन, तो अनायन इज बिगर देन एटम देन कटायन। अनायन की बात चल रही है, समझा क्या? अच्छा बिगर, हाँ बिगर, क्योंकि बी, इसमें 12 हो जाएंगे। वो मैं बताते क्यों ऐसा हुआ। If they say anion and atom में who will be the bigger? Then atom and smaller will be cation. क्यों होगा वो मैं बताते। हम बाटा थे खमून। ओ फैन बैन बंद, फैन बेटा बाहर जाके बंद करना पड़ेगा। एसी एसी हाँ तुम्हें बताता, बोलो ना आप ऐसा, हम टेम्परेचर एकदम आपको ये कर देंगे बेटा, लो फिर ले, सब कर दिया मैंने बेटा, ये ले। वाई वेरी गुड, ये मैं वाई में बैठाते। चलो बेटा आगे बढ़ो, खाली ये लिखा आपने, ये एक्स्ट्रा लिखना है आपको, खाली ऐसे इंफॉर्मेशन। डन डन। anion is bigger than atom than cation, why that I'm going to explain, come on भुटिया, आजा। this done, सुपा, सुपा बॉय यहाँ पे देख, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, चला जा। ए ना 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 ना, अभी ना आपको दो तीन चीजें मैं बताता हूँ। ए फर्स्ट, सुपर बॉय यू टेल मी बेटा, इफ इट इज Fe2 plus Fe3 plus, who will be the biggest? Fe, यार फिर बाद में Fe2 plus and then as charge on cation increases, एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, राइट ना? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, बिटवीन Fe2 plus एंड Fe3 plus who will be the biggest? 2 plus, याद रहेगा बेटा। चलो अभी मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सुपर बॉय लुक हियर, आई हैव रिटन, सॉरी, क्लोरीन। Okay, if I remove one electron from chlorine, beta, what I'll get? Cl1. And here what I'm doing, beta? I'm adding one electron. So it will become Cl. So this is my atom. This is my
cation. Positive ion are known as which ion? Negative is an ion. Okay, what is the atomic number of chlorine beta? 17. So it has 17 proton and 17 electron. Hey, here I have removed one electron or not? Will proton change? No. So 16. Here what I am doing, but I am adding one electron. Will proton change? No. But electron will increase or not? Now tell me, these are three classrooms. These are how many classroom? In classroom, these proton means teacher. Electron means student. Now in all the classroom, teacher are same or not? Tell me, beta. But in which class? In this classroom, student are more. And this classroom, student are least. In which classroom, teacher's hold will be more on the student? Tell me. इसमें होगा ना बेटा? हाँ तो बेटा अच्छा इसमें यार 17 टीचर आर कंट्रोलिंग 17 स्टूडेंट 17 टीचर कंट्रोलिंग 16 स्टूडेंट 17 टीचर कंट्रोलिंग 18 तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा तो बिटवीन एनाइन नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाई एनाइन इज द बिगेस्ट ओके अच्छा मैं आपको और एक बता देता हूँ सुनो बेटा अगर कभी भी याद रखना अगर मैंने कोई भी अगर आपको ऐसे ही आइटम दिया है एल्यूमिनियम एस चार्ज ऑन कटायन इंक्रीजेस एस चार्ज ऑन कटायन atomic size will decrease. If charge on anion increases, charge on anion, so what will happen? Atomic size will go on increasing. इतना सब टफ नहीं पूछेगा आपको लेकिन ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं टीचर और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हाँ सो वी हैव डन व्हाट बेटा एटॉमिक साइज नाउ बेटा व्हेनेवर एनी क्वेश्चन कम्स विद रिलेटेड टू इन रिलेशन विद पीरियोडिक टेबल आपको खाली क्या करना है व्हेनेवर आपको ना पहले ये कर देने का क्या करने का बेटा ऐसा ड्रॉ करने का डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज बस इतना कर दिया ना तो वी कैन आंसर मेनी थिंग्स नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज electropositivity or metallic character. What are metal? Electron donors. Who will be most metallic? The one who can donate electron with difficulty or who can donate easily. Okay, right बेटा युवान भाटिया अभी आप मेरे को बताओ ये डाउन द ग्रुप देखो okay this is my nucleus and here it is my electron who can donate electron easily ऊपर वाला या नीचे वाला बताओ because वो इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से so down the group tendency to donate electron and tendency to donate electron is which character metallic character okay अच्छा पता tendency to donate electron is also what reducing power down the group reducing power increases metallic character increases electropositivity increases अक्रॉस द पीरियड क्या होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आ रहा है कि नहीं बोलो ना तो अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज अच्छा मैं बताऊं डाउन द ग्रुप जो बढ़ेगा वो हमेशा अक्रॉस द पीरियड क्या होगा आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहां पर कम ऑन ऊपर क्या लिखा है बोलो बच्चे लोग बोलो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और so it is what tendency of an atom to lose electron or donate मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं स्लैश करके आप लिख सकते हैं रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम क्या होगा बोलो साइज बढ़ेगा तो इट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव विच इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट cesium is this clear to all of you right दिविजा आजा वो नाइस इयररिंग भी चलो बेटा आजा इधर पे आ जाते बेटा ओके ओके दिविजा आई टोल्ड यू नाउ ओके डाउन द ग्रुप बेटा व्हाट हैपेंस बेटा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कि नहीं नाउ अभी नाउ टेल मी नाउ दे आई वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा अंदर वाला या बाहर वाला आसानी से कौन सा निकलेगा ओके ए इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है न्यूक्लियस
तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा अपने आप बाहर जाएगा, एनर्जी लगेगी तो मुझे उसको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? सो एनर्जी देगा और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर। पहले कौन सा बाहर जाएगा? आउटर मोस्ट शेल। So the energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom is known as ionization potential. Now, Divija, tell me who will have more ionization potential and who will have least. Here electron is closer, so here I have to supply more energy or less. So here it will be more IP. Here if I go down the group, what is happened? This is away na. So here IP will be. Acha, across the period beta, if I am going, what is happening? Electron is coming closer na. So IP will be. So down the group, ionization potential across the period. कितना इजी है, बस ये ही आपको ड्रॉ करना है तो सारे आंसर आप कर पाओगे। तो ना कम ऑन डिफाइन। अच्छा बेटा, ये चैप्टर में ना डेफिनेशन आता है बहुत बार। ओके, जनरली दे विल आस्क, इसमें से ये दो डेफिनेशन में से बहुत ज्यादा पूछते हैं। कौन सा डेफिनेशन है? चार डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन है उसमें से ज्यादा। सबसे पहला क्या पूछते हैं? आयोनाइजेशन। बहुत ही ये कम हो गया रे भाई। आयोनाइजेशन। Come on, Divija, what was ionization? Amount of energy required to remove loosely bounded electron from each shell, length shell of an isolated gaseous. Why gaseous? Beta, it is very difficult to remove electron from solid. First, we have to convert that into gas, and then only I can. Down the group, what happens? Beta, tell me. दिखाई दे रहा है? What is happening? It is moving away, na? So it is what? अच्छा, लेकिन how to write the answer? Down the group, atomic size increases, atomic number also increases, nuclear charge is also increasing, but distance dominate. But number of orbit बढ़ता है कि नहीं? तो distance dominate over nuclear charge. Clear है? And the outer electron is away from the nucleus, therefore less energy is required. Across the period क्या हो रहा था बोलो बेटा? बोला atomic size decreases, nuclear charge increases, electron are held more tightly, therefore ionization potential. अब ओके, भूटानी एग्जाम में पूछेंगे विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल, विच हैज द लोएस्ट। तो पीरियड पूरे पीरियोडिक टेबल में जो बड़ा रहेगा उसका क्या होगा? लोएस्ट। स्मॉलेस्ट होगा उसका क्या होगा? हाईएस्ट। लेकिन इसमें आप लोग बोलोगे सर हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, फिर हीलियम होता है, लेकिन हीलियम इज स्टेबल, तो स्टेबल का सबसे ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर? बोलो शौर्य बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Now, beta, if I want to remove Shruti, beta, if I want to remove electron, so it is attracted to the nucleus, so I have to supply energy. Now, what I have to do? I want to add electron. I want to, beta, when you add electron, what happens? If I want to remove, energy has to be supplied. But if I add, then energy is released. Why? Why? Anyone? Bhutta, can you tell me why? Why energy is released if I add electron? नहीं आएगा बेटा, वो बुक में भी नहीं दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, दिस इज व्हाट 287 आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट बिकम व्हाट 288। बेटा दिस वाज अनस्टेबल एंड दिस हैज बिकम, but beta rule or law of nature, if once anything becomes stable, its energy is reduced and it will always energy will be released. Suppose beta मेरे में ज्यादा energy, I'll run here and there, बराबर है कि नहीं? आई विल बी अनस्टेबल, बट मेरा एनर्जी कम हो जाएगा। तो एक जगह पे मैं ऐसा पढ़ा रहा बेटा, एनर्जी कम हो जाता है मतलब आई बिकम स्टेबल, राइट? सो एनर्जी इज रिलीज। तो लुक, दिस वाज अनस्टेबल एंड दिस इज व्हाट, देयरफॉर दिस, इसका एनर्जी क्या हो जाता है? लो। इसका एनर्जी क्या था? तो जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो यहां से क्या हो गया? देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज। क्लियर है? अच्छा, इसने गेन किया कि नहीं? भट्ट बेटा, आदित्य भट्ट, इसने गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया? आयन। कौन सा आयन बना? नेगेटिव। नेगेटिव को क्या कहते हैं? अनायन। So if I want to define, अच्छा, whenever I add electron, so I am accepting an electron, so it is called as electron affinity. अच्छा, what is electron affinity? बोलो बेटा। It is the energy released. Energy released.
when an isolated gaseous atom accepts an electron and forms which ion? Anion. Anion. यहाँ पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट थिंग व्हाट दे विल आस्क यू दिस. Electron affinity. It is the amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion. ये डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए. क्लियर है? अब बेटा आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया? वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. ओके, राइट. चलो, अद्वैत ना बेटा, अद्वैत बेटा, you should first always draw what, bro? You have to draw this thing. And in exam, if I ask you now, down the group, ये दिखाई दे रहा है, and this is across the. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे देख ले. ओए त्रिशा जय, देख यहाँ पे. I want to add now electron from outside. I have to add electron from. So where I can add very easily when the electron, the outer electron should be what? Closer to the nucleus, or it should be away from the nucleus? Close. हाँ, तो यहाँ पे इसका क्या होगा बेटा? यहाँ पे बेटा क्या होगा? हाई. क्या था बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे बहुत दूर है ना, तो यार इट विल बी लो. सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, जस्ट लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल. यहाँ पे बेटा आई वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ना, एंड हियर वेयर आई कैन ऐड इजीली हियर ना. सो हियर इट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, and here it will be less. So down the group electron affinity decreases, across the period increases. बहुत इंपॉर्टेंट. अर्नब बेटा अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता था. नोबल गैस ऑलरेडी कौन है, कि क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा? So which group element has zero electron affinity? नोबल गैस. अंडरस्टूड? ये भी आएगा एग्जाम में, देखो ना. I want all of you to refer. Hey, look. Hey, top to bottom, what happens to your electron affinity? Come on, tell me. अरे, electron affinity decrease. Left to right across the period. हाई. और ये बहुत है, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर है बेटा? Which group element has zero electron affinity? Group 18 और नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस. क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? अभी मैं पहले आपको ये बताना तो भूल ही गया. ओ माय गॉड, आयनाइजिंग पोटेंशियल का हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर किया नहीं. चलो डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज. अक्रॉस द पीरियड Increase. तो देखो बेटा यहां पर मैंने दिया है, पीछे देखो ना. आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर अल्कली मेटल, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो लीना के आरबीसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो ये हेडिंग वाला देखना. आयनाइजेशन अल्कलाइन अर्थ का भी सिमिलर रहेगा कि नहीं बोलो? पीरियड में भी बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस. डिक्रीजिंग बोला तो उल्टा, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का दे दिया है. बरोबर. बट मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अलग से दिया है बेटा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग ने क्या किया है बोलो बेटा? देख, अल्कली मेटल में बरोबर ही होता था. डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है कि नहीं बोलो? और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा. अल्कलाइन अर्थ में भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज लिखा है. बट हैलोजन में बेटा डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था? लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोका, डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड डिक्रीज ना. तो लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो मेरा फ्लोरीन पहले आना चाहिए था, लेकिन आप प्लीज अंडरलाइन कर दो, फ्लोरीन और क्लोरीन. क्लोरीन पहले आ रहा है, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन. क्लोरीन इज द मूव. ये पार्ट पे अंडरलाइन करो प्लीज. हेडिंग देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला. अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा अगर आप एक चीज देखोगे बेटा, पीरियड में मैंने ना नोबल गैस दिया ही नहीं, ग्रुप में भी नोबल गैस दिया ही नहीं है. क्यों नहीं दिया है? होता ही नहीं होता. अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज व्हाट? Zero. लेकिन बेटा मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये आप अभी ये आपके लोअर स्टैंडर्ड में ये सब है. हायर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं नोबल गैस का भी रिएक्शन होगा 11 12. फिलहाल आप अपना आईसीएससी का याद रख, ठीक है? ओके. अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, हम लोग कहते हैं ना एनर्जी इज रिलीज्ड, लेकिन जब नोबल गैस के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा तो वो ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती डालना पड़ेगा. तो हाँ, रिएक्ट करवाने के लिए उसको. तो हाँ, उसका एनर्जी गेन होता है नोबल, वो सब अभी आपको, लेकिन अभी आपको याद रखना
भूल जाओ, आप वो अभी नहीं आएगा, वो आप 11th 12th में पढ़ेंगे। एनीवेज, ए अभी आप समझे बेटा मैंने नोबल गैस यहाँ पे क्यों नहीं बताया? पीरियड में भी देखो, पीरियड में भी देखो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो देखो ना, लीन देखो फ्लोर नोबल गैस मैंने बताया है क्या यहाँ पर? अब समझा क्यों? क्योंकि नोबल गैस का फॉर योर आईसीएसई लेवल यू हैव टू एज्यूम इट इज व्हाट, 0 इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? देखो इतना सब ध्यान से बना, यहाँ पर देख रहा है आर्गन दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी देखना है, अगर डिक्रीज आर्गन तो पी देखा, एक एक चीज इतना डिटेल में दिया है, इसके भी अलग अलग से दिया है, समझा क्या? लेकिन यहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अंडरलाइन करने का था? अभी आप बोलोगे सर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? हम लोग ने क्या पढ़ा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं बोलो? तो व्हाट शुड हैपन टू योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट शुड व्हाट, डिक्रीज। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का कम, लेकिन यहाँ पे किसका ज्यादा है? ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आ जाओ यहाँ पे। ए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, क्लोरीन इज 17, फ्लोरीन का साइज इज स्मॉल, क्लोरीन इज बिग। यार हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑलरेडी? 9 आर देयर। कितना है? एटॉमिक नंबर 9 है ना बेटा? और यहाँ पे कितना है? 17 है। समय अलग अलग बना होगा, आप समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? राइट। अच्छा, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज बिग। नाउ बेटा इफ यू सी द प्लेस ऑक्युपाइड बाय फ्लोरीन इज लेस, सपोज बेटा मैं इतना, मेरे नीचे की टाइल है, ये टाइल में मैं फ्लोरीन हूँ, ओके, और मेरे अंदर ऑलरेडी वो 9 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग वी आर स्ट्रगलिंग टू स्टे ना बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी जगह में खड़ा रहेगा तो ये भी मुझे धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, right? हम लोग फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। बाहर से भी मैं बोलूंगा और एक इलेक्ट्रॉन को मैं अंदर आने दूंगा क्या? हम लोग अंदर आने देंगे क्या? हम लोग के खुद के रहने के वादे हैं बेटा, वी आर ऑलरेडी फेसिंग डिफिकल्टी, राइट? तो उसको मैं अंदर आने दूंगा क्या? तो वो बोलेगा अरे मुझे अंदर आने दो, मैं बोलेगा चले 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 चले, अरे आने दो। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, तो मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन को अंदर आने दूंगा क्या? क्लियर है ना बेटा? अच्छा, तो आप बोलेगे तो क्लोरीन में तो और भी ज्यादा है। क्लोरीन में बेटा जगह भी क्या है, बड़ा है, पब्लिक भी है 17, नो डाउट, बट द तो इफ यू सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वी यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉन, योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली लो एज कम्पेयर, रिलेटिवली मैंने वर्ड यूज किया है, योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली लो। अच्छा अभी मैं आपको एकदम इजी बता, सपोज मेरा ये बाहर से मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना था? तो अभी दोनों में मेरे को इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी। तो बेटा इसमें अंदर जाने के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं? अरे इमेजिन ये 100 में से उसने अंदर जाने में लिए कितना यूज कर दिया एनर्जी? 90 का। तो बाहर वो अभी कितना रिलीज करेगा जब अंदर ऐड हो जाएगा? तो ओनली हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज? 10। अच्छा, क्लोरीन के अंदर भी जा रहा है, क्लोरीन भी उसको मिलेगा, अरे भाई मता मता, लेकिन कंपैरेटिवली इट विल बी, रिपल्शन विल बी व्हाट, लेस। तो क्लोरीन के अंदर जाने के लिए लेटर से उसका एनर्जी कितना यूज हुआ? 70। तो बाहर उसने कितना रिलीज किया? एकदम बेस्ट एग्जांपल दे दूं, दो बस है बेटा आपके सामने आ रही है, दिस इज लेस क्राउडेड, सॉरी दिस इज क्राउडेड बस, दिस इज फ्लोरीन इज योर क्राउडेड बस एंड क्लोरीन इज लेस क्राउडेड, इन विच बस यू कैन एंटर इजिली? Less crowded. हाँ, तो therefore इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाई। लेकिन अभी भुट्टा मेरे को सुप्पा क्या बोलेगा पता है क्या? सर अगर ऐसा है, फ्लोरीन 9 है, क्लोरीन 17 है, तो ब्रोमीन तो उससे भी उसका बड़ा साइज है कि नहीं? राइट ना बेटा, बड़ा साइज है कि नहीं? और आयोडीन इज 53 होता है बेटा, तो बड़ा साइज है कि नहीं बोलो बेटा? तो आप बोलोगे सर तो ब्रोमीन का तो और भी इजी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना चाहिए था कि नहीं? राइट ना बेटा? बट आई विल टेल यू द रीजन, लुक हियर, हियर हाउ मेनी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर? ओनली ऑफ 8। बिटवीन दीज टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इज देयर? अरे बेटा तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होता है फ्लोरीन से भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी बढ़ गया कि नहीं, साइज बढ़ा, बट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग मोर। आर यू गेटिंग इट? बट एग्जामिनर आपको वो आगे का नहीं पूछेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए था कि नहीं सर? सर आप बोल रहे साइज बढ़ रहा है, तो ब्रोमीन का साइज तो क्लोरीन से भी बढ़ा है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ज्यादा होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, आयोडीन में उससे भी ज्यादा हाई होता है। So therefore, who has the highest electron affinity? Chlorine. Then bromine, then iodine. Have you understood this? Clear? Okay. Now, beta,
अभी बेटा ना मैं एक एक लास्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा, फिर मैं बोर्ड क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना बेटा? यस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा बेटा, एक मैं हूं और मेरा जुड़वा भाई है, दोनों सेम है। इन दोनों, हम लोग दोनों के बीच में सपोज ऐसा टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो कुछ होगा क्या? बोथ आर सेम ना, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन हियर ओनली। ना बेटा लुक, अभी ये एक्स और वाई है, इन दोनों के बीच में अगर टग ऑफ वॉर होगा, कौन ज्यादा पावरफुल आपको नजर आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स के पास होगा या वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लेकिन एक्स ने भी टग ऑफ वॉर में, पता है ना, दोनों जन रोप हेल्ड करके रखते बेटा, बरोबर है कि नहीं? So now electron pair has shifted towards whom? So okay, so can you see it has shifted here, na beta? So tendency of an element, tendency of an to pull the shared pair of electron towards itself in its compound. In its is known as क्योंकि बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रो, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा ऑलवेज कंपाउंड होना जरूरी है। अब तक हम लोग ने पढ़ा था वहां पे अकेला एलिमेंट होता था, यहाँ पे क्या होना जरूरी है? देखना दो। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल shared pair of electron towards itself in its compound or in its combined state. क्लियर है? Where is the electronegativity? Come on. डन डन डन। अच्छा, ये रहा बेटा, मैंने आपको बोला था ये चैप्टर में बेटा ये चार डेफिनेशन ज्यादा पूछते हैं। एक तो एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन। ये जो दिया ना यहाँ पे सब दिया बेटा। ये रहा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कम ऑन, राइट? Krishna beta, now tell me beta, electronegativity is the ability of an atom to attract shared pair of electron toward itself in its। अच्छा बेटा, अभी आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो। कौन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, मेटल या नॉन मेटल? अच्छा, पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कहां पर होता है, लेफ्ट में या राइट में? नॉन मेटल। ये सस्ते नशे कौन सा करता है भाई, मेरे को भी दे भाई। ठीक है, ओके या ए भाई, कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे देख। अच्छा, ये तो अच्छा, हु विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल और नॉन मेटल? तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। तो देखो, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी देखो टग ऑफ वॉर अगर मैं करा, इमेजिन हम लोग सब है ना बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, दिस इज पीरियोडिक टेबल, वी ऑल आर एलिमेंट। तो भी बेटा आप सबका, हम सबका एक इंडिविजुअल पावर होगा ना। अगर मैं सबके टग ऑफ वॉर आपका कराऊंगा तो आपका बिल्ट इन पावर होगा कि नहीं? तो पीरियोडिक टेबल के बेटा वो एलिमेंट का सबका बिल्ट इन पावर होता है टू पुल द इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो। वो बेटा आप लोग है ना, स्केल होती है, अलग अलग स्केल। पॉलिंग स्केल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, अल्फ्रेड रॉशो स्केल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, मुलिकन स्केल्स पे हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो सब हमको नहीं करना है बेटा, हम खाली है ना, हाँ वो आप हाईएस्ट एलिमेंट, लेकिन आपको खाली याद रखना है ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी, और साइंटिस्ट लोग ने सबका कैलकुलेट करके रखा है। एंड विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन। विच इज द सेकेंड मोस्ट? ऑक्सीजन। विच इज द थर्ड मोस्ट? नाइट्रोजन। विच इज द फोर्थ मोस्ट? क्लोरीन। फोन कॉल, क्या याद रखने का? फोन कॉल। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वो सब अभी आपको याद नहीं रखना है फिलहाल, लेकिन हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे विल आस्क यू दिस ओनली। अच्छा, बच्चा हमेशा गड़बड़ करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला तो कौन है? बट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला तो क्लोरीन। ये बहुत गड़बड़ होती है बच्चों, क्लियर है? हेलो बोलो ना। अच्छा बेटा, ये व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर वाज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू गेन। पीरियोडिक टेबल में कौन नॉन मेटेलिक होता है, मेटल या नॉन मेटल? तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप। व्हाट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस। क्लियर है?
अब बेटा अभी आप बोलोगे तो सर इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है, तो देखो यहाँ है, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेयर इट इज, देखो देख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी डिड ना बेटा। अच्छा मैं आपको बताऊं क्या, खाली एटॉमिक साइज ही डाउन द ग्रुप बढ़ता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुनो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम, अक्रॉस द पीरियड। क्लियर है, बोलो ना, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अच्छा बेटा ये सब मैंने यहां पर भी फिर से दिया है आप लोगों को, बेटा दिखाई दे रहा है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रेड्यूसिंग पावर, ऑल दिस वी हैव डन, ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एंड दिस इज अक्रॉस द पीरियड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, अभी बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट में बेटा आपको याद रखना है, फर्स्ट 20 एलिमेंट में दो ही मेटालॉइड है, बोरॉन एंड सिलिकॉन। तो बोरॉन एंड सिलिकॉन, कैन यू सी दिस, बोरॉन एंड, ओके तो एकदम पेज पीछे देखो, विच आर द मेटालॉइड इन फर्स्ट 20 एलिमेंट, बोरॉन एंड, क्लियर? ओके अर्नव बेटा भी तू मेरे को बता, ये ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक क्यों बोला, भाई दिस ऑक्साइड आर कॉल्ड एसिडिक? नो 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 बेटा, कोई भी ऑक्साइड ले, उसके अंदर पानी डाल, कोई भी ऑक्साइड लेने का, यू ऐड वाटर टू इट, कार्बन डाइऑक्साइड के पानी डालेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा कि नहीं? सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर डालेगा तो क्या बनता है, सल्फरिक एसिड या सल्फरस एसिड। ना हाँ, तो बेटा कोई भी ऑक्साइड के अंदर इफ यू ऐड वाटर, इफ इट फॉर्म्स एसिड देन दे आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये सारे बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक। एमसीक्यू में आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूँ, सुन बरोबर। चलो बेटा आ जाते हैं, ये अद्वैत, ये सबको बेसिक क्यों बोला हम लोग ने, हाँ पानी में डालेगा तो दे फॉर्म बेस, समझा क्या? ओके, आपके पूरे 10th के और 9th के सिलेबस में आपको ये याद रखना है, जनाबे अली इन पब, जनाबे अली इन, इसका मतलब क्या था भूल गए? जनाब मीन्स झिंक, एल्यूमिनियम एंड पीबी। बेटा these three are amphoteric, what they are, पूरे सिलेबस में भी चार, थ्री एम्फोटेरिक मेटल और थ्री एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जिंक, एल्यूमिनियम एंड पीबी, याद रहेगा ये। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है शौर्य पता है? एम्फो, एम्फो मतलब डुअल कैरेक्टर, एम्फीबिया वर्ड सुना है बेटा, फ्रॉग इज लैंड पे भी रहेगा वाटर पे भी रहेगा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा दोगले किस्म के, डुअल कैरेक्टर, वो लोग एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ। क्लियर है, डुअल कैरेक्टर। अच्छा एमसीक्यू में, अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा है, अच्छा पहला भी ये बता दिया, फिर बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड, व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ए शेट्टी व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड, चाह दोस्त बताए बाय दे आर न्यूट्रल बिकॉज बेटा व्हेन दे, अच्छा कोई भी ऑक्साइड के अंदर पानी डाला अगर उसने एसिड बनाया तो एसिडिक, देन बेटा अगर पानी डाला बेस बनाया तो बेसिक, बट पानी डाला कुछ नहीं बनाया तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। ओके दे आर न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाउ एग्जाम में मैं क्वेश्चन कैसा पूछूंगा, ये भूटानी, यहाँ पे देख मैंने तेरे को तीन यहाँ ये एग्जांपल दिया और एक यहाँ से बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, एमसीक्यू में समझ में आया कि नहीं? ओके फिर ऐसा मैं एग्जांपल दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, फिर अभी ऐसा दूंगा, ये ऐसा दूंगा और ये भी दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर ऐसा भी दूंगा, यहाँ ये ऐसा दूंगा और एक यहाँ से उठा के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल, समझ क्या? सी ए ओ, सी ए ओ, किसमें, न्यूट्रल में? बेसिक, तो बेसिक में तो है ही नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है बेटा, एक दो पूरा यहाँ पे तो मैं पूरा भर सकता हूँ, भर भर के, जगह ही नहीं है ना मेरे पास। अरे भाई ऐसा पूरा लिखते बैठो क्या, जनरली मेटल ऑक्साइड और बेस, खाली एम्फोटेरिक में ये तीन होने, ये तीन एम्फोटेरिक को छोड़ के बेटा कोई भी मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। अच्छा जो भी बेस होता है वो जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली, क्या कहते हैं, लीना के आरबीसीज और अमोनियम, यही है अल्कली तुम्हारे लिए। और उसके अलावा जो वाटर इनसोल्यूबल होगा उसको क्या कहते हैं, बेसिक।
अब बेटा एग्जाम में इसी इसी का मैं तुमको बताता हूँ। इसमें ना बेटा आपका 25 में क्या 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 क्वेश्चन आया था वो मैं बता, देखो बेटा ये यार मैंने प्रिंटिंग के लिए अभी दिया है। ये किधर गया भाई, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये बोर्ड यही था क्या? एक देखने दो हमको। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो ये बोर्ड क्वेश्चन है बेटा, दिखाई दे रहा है? आई डिस्कस दिस विथ यू, डोंट वरी। राइट ना बेटा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, डोंट वरी। तो बेटा अभी अगर आपने देखा, मैंने मेरा ये जो पार्ट था उसमें से मैंने सब आपको करवा दिया है। अच्छा बेटा मैं ब्रेक नहीं देता, फटाफट डिस्कस कर लेता, जल्दी छोड़ देता हूं थोड़ा, ठीक है ना बेटा? राइट ना? दैट विल बी बेटर ना? ओ यो ब्रो। ठीक है बेटा, तो अभी आ जाते हैं बेटा मेरा वो। अरे पंखा तो बंद, अच्छा जस्ट मिनट बेटा, मेरे को अच्छा इसी को, अरे यार क्या करना था मुझे। हाँ 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 हाँ, जा 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 जा, जिसको वॉच में जाना बेटा तो जा जा। तब तक मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। अरे यार इसमें ये प्रॉब्लम। हेलो, गो 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 बेटा, गो 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 गो। आई जस्ट डिस्कस क्वेश्चन। अच्छा पहले मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन बता देता, सुनो। ओहो बेटा, आई लीव यू अर्ली बेटा, दैट विल बी बेटर, अदरवाइज वो ब्रेक लेके फिर ऐसे ही टाइम पास होगा बेटा। हाँ मेरा कहाँ गया? श्श्श, देखो मैं आपको बता देता एग्जामिनर के कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये बोर्ड प्रिंट ऐसा दिखा, तो प्रिंट कहाँ पे लिखा है? हाँ। ओ माय गॉड, वी गॉट इट ब्रो, वी गॉट इट वी गॉट इट। अभी इस पे मैं लिखूंगा ना तो वो मार्क नहीं आएगा बस। टेन टेन। अच्छा एग्जामिनर का बेटा सबसे पहला ये सब बोर्ड क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस। फैन जाके बंद करके आना, तो वो बटन दिखता नहीं है क्या तेरे को? पता है ना, तू नया तो नहीं है ना? नहीं। हाँ चलो बेटा आ जाओ, इसका आंसर बताओ मुझे, चलो फटाफट। कम ऑन, दिख रहा है सबको? चलो बेटा स्टार्ट कर दे। कम ऑन शेट्टी। एन एलिमेंट इन पीरियड 3 whose इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। पीरियड 3 में कौन था? आर्गन, वेरी गुड बेटा। अरे आंसर देख के यहाँ पे बता रही है। द एलिमेंट विच हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। ओके, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अच्छा ये लोग ने क्या क्या दिया है? कार्बन, लिथियम, नाइट्रोजन। तो बेटा आप समझ जाओ, एक ग्रुप टू के लाई बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो चलो बेटा इसमें से अभी कौन कौन दिया है वो लोग ने? बेरिलियम दिया है, और कौन दिया है? लिथियम दिया है, और कार्बन दिया है, और अभी वो लोग ने क्या बोला है? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन होगा? अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस ना? लिथियम। डन डन आ जाओ। ये व्हाट इज द टर्म गिवन? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था ना ऐसा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देख अभी देख ऐसा आएगा क्वेश्चन, ये बेटा एग्जामिनर का फेवरेट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेटा ये लोग ने क्या दिया है? तो देखो आपको पता है ना बेटा, ये ना मांगू अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू के। अब इसमें से देखो बेटा कौन कौन है? एमजी है, एल है, सीए है, और के। अच्छा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसका साइज सबसे बड़ा। कौन सबसे बड़ा होगा यहाँ पर? अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? तो एक पोटेशियम सबसे बड़ा है ना। तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव बोलो बेटा, बोलो ने डिक्रीजिंग। तो पहले कौन आएगा? के बाद में कौन आएगा? कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर एम जी। क्या क्या? हाँ हाँ एन ए है ही नहीं ना अंदर, आई एम सो सॉरी, मैंने एन ए। अरे यार ए क्या डिक, अरे अरे बाबा कौन कौन सा दिया है वो पहले टिक कर ले, ये चार दिया है ना? हाँ तो ये चार दिया में तो के फिर सी ए फिर एम जी है फिर ए एल, बराबर है? ओके यार, सी इज द avatar, that cat is an avatar of ghost। ओके बस अभी हाँ 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 बेटा जा जा अभी है। लुक बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा अभी एग्जामिनर का ना सबसे फेवरेट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लिसन।
लिसन केयरफुली, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके अभी वो लोग ने क्या दिया बेटा, ए कैन यू सी दिस इज पीरियड विल बी, अच्छा बेटा वेन एवर दे गिव अल्फाबेट, वेन एवर दे गिव, you have to write in terms of that alphabet only until and unless they tell you to identify that element. Okay, okay कृष्णन बेटा यहाँ पे बता which is the most electronegative element in this, सब में से। अच्छा मेरे को बता पूरा सबसे पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन कहाँ पे होता है, सेकंड पीरियड में ग्रुप 17 में। तो कौन है यहाँ पर इसमें से बेटा, ये देख एम कैसे, अरे सेकेंड पीरियड है, यही तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अच्छे से देख। ए हाँ, वहाँ पे एफ एफ लिखा है, समझा कि नहीं, लेटर लिखा हाँ तो एफ एफ लिखा है। कौन सा बंदा? हाँ तो बस बस जाने दे बेटा इसको, अभी पहला याद देख ले। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, जे। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्यू, क्यू कहां पर है, ये रहा बेटा। मैं आपको बताऊं 30 ए बोका 13 14 15 जो भी रहता है ना ग्रुप में, तो उसमें से -10 कर, तो 15 -10, सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब समझ में आ रहा है। अच्छा बेटा अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख मैं इसलिए बोलता था पीरियोडिक टेबल और हमेशा इसका कंपाउंड है ना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन सिमिलर आता है। अच्छा ये व्हाट दे हैव टोल्ड ई, और यहाँ पे क्या बोला है, ओ मतलब ये वाला वो, ये ई का वैलेंसी कितना है, 13 में होता है, तो मैंने क्या बोला -10, तो कितना हो जाएगा 3। ओ का कितना है 6 है ना, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी 2। तो क्या करोगे, तो कौन सा मैच हो रहा है, प्लीज बेटा अगेन आप मैंने इसलिए हमेशा बोला है, देखो आप जब तक है ना ये बोर्ड क्वेश्चन नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सब मैं आपको देने वाला हूं प्रिंटेड नोट्स में, डोंट वरी। क्लियर है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं बेटा। फिर देखिए ये भी आता है बेटा, ये देखो अभी देखो ये मैंने कौन सा बोला, ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने क्या बोला जब भी मैं टेस्ट लूंगा ना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ही मैं पूछने वाला हूँ। अच्छा व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड एक्स, ए किधर है देख बेटा, ए ये रहा, एक्स किधर है। अच्छा तेरे को पता है ये मेटल है या नॉन मेटल, मेटल, और ये कौन है, तो मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ऑप्शन में क्या देखोगे हम लोग बेटा, कौन सा आएगा बोलो, आयोन, इलेक्ट्रोवैलेंट वर्ड नहीं दिया तो आयन, समझा क्या। ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ ये बहुत मस्त है, ये बहुत मस्त है। हाँ आंसर कुछ नहीं। अभी देख बेटा ये कौन हो गया, ये पीरियड 1 हो गया, देख लेने का अच्छे से, कभी कभी वो लोग ऐसा देंगे नहीं तो आपको खुद से लिखना है। ये क्या होगा तेरा ग्रुप 1 ग्रुप 2, और ये क्या होगा 13 14 15 16 17 एंड 8। चलो बेटा, एलिमेंट विच फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद जी, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। जी मतलब कौन है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ कौन होना चाहिए, मेटल। तो बच्चे यहाँ पे वेरी गुड, सब लोग ए ही बोलते हैं, ये रॉन्ग है। मैं बताता हूँ रीजन, ए कौन है, हाइड्रोजन, पहला पीरियड दिया है, हाइड्रोजन, और ये दे रहा है ये क्लोरीन, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल क्लोरीन भी नॉन मेटल, क्या वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, अब समझा बेटा। तो ऐसे सारे टफ क्वेश्चन, हाँ तो आंसर कौन होगा बेटा, बी। तो आंसर क्या होगा इसमें से, विच एलिमेंट, बी। ए ने क्यों नहीं किया, आप समझा क्या, बिकॉज ए इज अ हाइड्रोजन। अच्छा अभी ये कैथोड वैथोड वाला जाने थे बेटा, विच नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैज वैलेंसी 2, इसमें से वैलेंसी 2 किसका होगा, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल मतलब ग्रुप 16 में ना, तो कौन होगा, विच इज एन इनर्ट गैस, एयर। अब समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए ये बहुत बार आया है बेटा, ये देख रहा है टर्म्स यूज, ऐसा वो लोग पूछेंगे बेटा, क्या बोलेंगे term। फिर ये टेबल वाले क्वेश्चन भर भर देखिए कैसा आ गया। चलो बेटा आप मेरे को बताओ फटाफट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जे, जे ये रहा। अच्छा ये कभी कभी ऐसा रोमन में लिखा है 5, मतलब वो ग्रुप 15 होता है, याद रख। रोमन में अगर ऐसा दिया है मतलब वो क्या होगा, ग्रुप 13 14 15। तो जे में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोका 5। सिंगल नेगेटिव चार्ज वाला आयन कौन बनाएगा, नेगेटिव, सिंगल मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, एक ही, कौन करेगा,
द मेटेलिक एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव देन आर से रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा? आर से ज्यादा कौन होगा? जिसका साइज बड़ा, टी होगा। क्योंकि जितना बड़ा साइज वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? हेलो। द एलिमेंट विच हैज इट्स इलेक्ट्रॉन अरेंज इन फोर शेल, फोर शेल में कौन होगा बताओ? अगेन टी। क्यों? अरे बेटा फोर्थ पीरियड, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल और नॉट, टेल मी। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएंगे? अच्छा, बस अभी बेटा मैं आपको विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स आई लीव यू। ओके, अभी इधर आ जाओ बेटा। आप देखो बेटा, मैंने यहाँ पे सारे गिव रीजंस दिए हैं, देखो ये सारे गिव रीजन मैंने आपको दिया है कि नहीं, बोलो। विथ क्वेश्चन आंसर नोट्स में ही है। क्लियर? अच्छा बेटा, अभी मेरे को खाली बताओ, अनायता को मैंने नोट्स दे दिया। अश्लेषा तेरा नोट्स मैं किसको दे रहा हूं? अदिति को। शनाया क्लेव नेक्स्ट So you टाइम can give it to Sarah. Sarah bhi, I think she lives near me only, so I'll collect it from आज her. मिलने वाली है तो उससे आज तो नहीं, but if I'll meet, तू तो I'll कब यही collect it. सेंटर में आती है क्या? ये सेंटर में कहाँ पे हाँ कोइंसिडेंट? सर, कब आती है? हाँ सैटरडे को I'll come अभी, हाँ तो मैं, या फिर हाँ वेडनेसडे तो मैं को. यहाँ पे ही रख लेता हूँ नोट्स, ठीक है। ओके ओके, हाँ. और इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू, बट तू उसको दे देगी ना बेटा? मतलब वो यू विल कलेक्ट फ्रॉम हर ना बेटा, शनाया? Yes sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी।